Alright, Ji, the next one is again about father's post-retirement conundrum. Hello Junaid bhai, please keep my identity anonymous. हमेशा सबकी होती है. I hope this email finds you well. I've been a huge fan over the past few years, especially after I moved abroad. Your channel has been my connection to home and my source of solid brotherly advice. I wanted to reach out to you today to ask for some advice about my father's post-retirement dilemma. Context: my father served in the merchant navy for over 30 years as a captain. He moved out to support his parents at a very young age and throughout his career has traveled across the globe. He sacrificed a lot of time with his family, especially during mine and brother's childhood, just to give us a platform to live a comfortable life. And we are, of course, really proud of him. He's a smart man who can be tough but fair in his criticism. The problem: my dad retired 5 years ago, even though the company he worked for was desperately trying to give him another extension. His reasoning was understandable. Both my grandparents passed away while he was out in the sea, and he missed their respective burials, which, even though he doesn't admit it, took a big toll on him, of course. Ever since he retired, the transition was tough for him. After the job that required mental focus and physical discipline, he's absolutely not the type of the person to sit back and relax. Even before I left, 80% of his day would be spent on the phone or watching TV or doing completely menial things. I have seen him have 1 to 2 hour long heated conversations with customer service agents for banks, fridge companies, and electricians, you name it. He just can't put his energy to good use. After COVID, his temperament can be really volatile. I'm pretty sure he's depressed. He can have bouts of anger or just long periods of time, mainly at night, when he endlessly scrolls social media, says nothing and does nothing. He has gained weight really quickly, no physical exertion to speak of, no routine at all. Myself, my brother, and my mother have tried to intervene many times. I suggested he go seek professional therapy, to which he was outraged and completely shut down the conversation. A lot of his friends have started working part time as consultants abroad, even after retirement. Dad has been made offers by some really good companies, yet he keeps refusing. It's baffling, and he just won't have an honest conversation with anybody about it. He either refuses or just ignores me. I don't want to speak on his behalf, but working part time would help him find a sense of purpose and to get a temporary respite from constant stress of living in Pakistan. I would love your help on this matter. What can we practically do to help him out? So ये भाई हैं, इनके फादर 30 साल मर्चेंट नेवी में कैप्टन रहे, ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, मगर मर्चेंट नेवी की ज़िंदगी बड़ी सख्त होती है. मैं आज ही सुबह एक शख्स से मिला, उनके फादर भी थे और वो 9 महीने आउट इन द सी होते थे और फिर आते थे, कभी एक हफ्ते बाद दोबारा कॉल आ गई, कभी 1 महीने के लिए वगैरह वगैरह. तो मैंने उनसे ख़ास यही पूछा, हाउ वाज हिज रिलेशनशिप विद हिज फादर, क्योंकि वो कहते हैं ना, आप जिस बोट में होते हो आपको उसी तरह की किश्तियाँ और नज़र आ रही होती. तो बिकॉज आई एम वेरी कंसर्न अबाउट माई ओन यंगलिंग, तो मैं आई ट्राई टू थिंक लाइक अ फादर नाउ, और मैं उसी पर्सपेक्टिव से सोच रहा होता हूँ कि लाइक आई नीड टू क्लोज इन द डिस्टेंस, और इससे पहले कि उसके दिल में एंगर आए एंड दैट यू नेवर अराउंड एंड देन आई एम जस्ट समबडी ही हैज़ टू से सलाम एंड गो टू हिज रूम, यू नो, उस तरह का बाप नहीं बनना. तो मुझे उसी तरह की चीज़ें नज़र भी आ रही हैं. दैट्स व्हाई आई एम इंक्लूडिंग दिस वन. सो 30 साल काम किया और अब ज़रा वो चिड़चिड़े हो गए हैं और वो सोशल मीडिया पे होते हैं और कोई काम नहीं करते. आई थिंक उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर है. उसकी वजह ये है कि एक तो ज़ाहिर है ही ऑब्वियसली इट टुक अ लॉट ऑफ टोल ऑन हिम कि वो अपने वालदेन की मैयत पे नहीं आ सके. ये बहुत बड़ा सदमा होता है बहुत से लोगों के लिए कि वो आखिरी बार नहीं मिल पाते. और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ और मैं आपसे भी ये बात बोलूँगा कि देर आर सम पीपल, योर डियर वंस, जिनसे आप ऑलरेडी आखिरी बार मिल चुके हैं. देर आर अलाइव एंड वेल वेर एवर दे आर, बट आप उनसे आखिरी बार मिल चुके हैं. एंड वन डे यू विल जस्ट हेयर द न्यूज़, रात को 3 बजे कॉल आएगी या कुछ ना कुछ. आई मीन अल्लाह खैर करे, लेकिन दिस इज़ रियलिटी ऑफ लाइफ. और ये फिर मेरे दिल में भी रहता है कि मैं कितनों से ऑलरेडी मिल चुका हूँ, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट. एंड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ डेथ बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पार्टिंग वेज. फॉर एग्जाम्पल, हम जब स्कूल में थे वी थॉट वी वर गोना बी फ्रेंड्स फॉर एवर एंड एवर, एंड लुक एट नाउ. पिछली जॉब वाले भी दोस्त नहीं अभी तक, राइट? स्कूल कॉलेज, तुम्हारा कोई दोस्त है बचपन से? बस वही है ना, एक ही होता है भाई, 1-2 ही होते हैं, बस ज़्यादा नहीं होते. तो मेरा भी एक ही है. तो ये लगता है आपको कि ये रहेगी चीज़ें, लेकिन वो नहीं रहती. तो वो आई थिंक उनके अंदर एक ये वाला रिजेंटमेंट ज़रूर है कि वो अपने पेरेंट्स से आखिरी बार नहीं मिल सके, और ये बहुत से लोगों को सदमा ज़िंदगी भर उनके साथ रहता है.
दूसरी चीज़ ये है जो मुझे लगता है वो ये है कि ही probably now feels that he has missed out on life, और वो समंदर की ज़िंदगी यार जहाँ देखो पानी ही है, डिप्रेसिंग तो होती होगी, बहुत आसान तो नहीं है। और वो फिर यही है कि आप यूं करते करते बड़े हो गए। अब जैसे कल मैं अपने बेटे की वीडियो देख रहा था, अभी आने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, माशाल्लाह ही इज़ वेरी टॉल, और मैं यही देख रहा था कि लाइक नॉट सो लॉन्ग अगो इतना सा था, राइट, एंड नाउ ही इज़ दिस टॉल। तो आपकी नज़रों के सामने क्या कुछ हो जाता है, तो उनको ये भी रिजेंटमेंट होगी कि ही मिस्ड आउट ऑन योर चाइल्डहुड, योर ब्रदर्स चाइल्डहुड, या एक सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ, यू नो, बेगम को लिया, ड्राइव पे चले गए। क्योंकि फिर मर्चेंट नेवी वाला अगर आता है तो फिर जिस तरह जिन साहब से मैं मिला तो वो फिर अफरा तफरी होती होगी, चलो अब मैं आया हूँ, जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है क्योंकि फिर जाना ना पड़ जाए। मगर होता ये मर्चेंट नेवी वाले घर बना लेते हैं, वो कहते हैं ना बाहर की कमाइयों से घर बनते हैं। तो मेरे जितने भी जानने वाले मर्चेंट नेवी माशाल्लाह उन सबके घर बहुत खूबसूरत हैं और बड़े हैं। कराची में, यू नो, कराची में बड़ा घर बड़ी बात होती है, लाहौर वॉर में तो आराम से मिल जाते हैं, इतने इतने महंगे नहीं होते। तो एक बंदा कुर्बानी देता है और फिर सबके लिए, सबको पैरों पे खड़ा करने के लिए, सो वो ही फील्स लेफ्ट आउट। वो कुछ लोग ये फील करते हैं कि दे डिजर्व मोर अप्रिसिएशन, एंड आई एम नॉट डिनाइंग कि ही डजंट, इट्स नॉट एन ईजी जॉब दैट इज़ डन, मगर वो उनका पूरा नहीं होता। आप रोज़ाना तो हार नहीं पहनाओगे ना लाके, ठीक है हो गया हो गया, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस एंड इट इनेबल्ड अस टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। मगर वो उनको एक ये भी रहता है, अगेन आई एम जस्ट अज्यूमिंग, ये मैं बहुत सारे सिनारियोज बता रहा हूँ, एंड तो तभी पता चलेगा जब वो अपने दिल की बात किसी से करेंगे। अब रही बात सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया इज़ अ वर्म होल एंड इट्स वेरी वेरी टॉक्सिक। सोशल मीडिया ने एंगर लेवल्स वैसे ही बढ़ा दिए। अब हमारे यहाँ किसी किस्म की स्टडी होती नहीं है कि हमारे पास कोई प्रॉपर डेटा हो कि आज से 10 साल पहले कार्डियो में 25 से 35 साल वाले कितने लोग आ रहे थे और अब कितने आ रहे हैं, राइट। रेशियो अगर हम देखें वो बढ़ गया होगा डेफिनेटली, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए हैं, नेगेटिविटी सारा दिन आप सामने देखते हो, पहले ऐसा नहीं था। लाइफ वॉज मच मच सिंपलर, एंड आई डोंट नो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, किड्स हु आर बोर्न पोस्ट 9/11, तो आप लोगों ने तो प्री इंटरनेट एरा देखा ही नहीं है। यू हैवंट बिन बोर्ड, ये मैं कह सकता हूँ, आप लोग कभी बोर नहीं हुए, कभी छत को देख रहे हैं, मतलब हाँ लाइट चली गई, नेट नहीं आ रहा, वो एक अलग चीज़ है, मगर वैसे ही कुछ है ही नहीं आपके पास। टीवी ट्रांसमिशन बंद हो जाती थी, लाइक कि अब टीवी नहीं आएगा, अब तो 24 घंटे आता ना, पहले तो तभी ख़त्म, कुछ दिखाने को ही नहीं है, प्रोग्राम्स नहीं होते थे, वो भी एक टाइम था। सो नाउ सोशल मीडिया इज़ एन एंडलेस लूप, इट्स अ बॉटमलेस पिट ऑफ इंफॉर्मेशन। आप कोई भी ऐप को जाए, आप स्क्रॉल करते रहे क़यामत तक, वो चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, इट नेवर एंड्स। और वो डिज़ाइन इस तरह हुआ है कि इट कीप्स यू वांटेड, और वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इसलिए ज़्यादा चलता है बिकॉज इट गिव्स यू द सेम हिट, डोपामीन हिट एज कोकेन। मज़ा आता है, हर थोड़े बाद एक स्पाइक मिलता है, क्योंकि फिल्म में ये होता है कि फिल्म में पूरा एक देयर विल बी ब्लड है, या गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क है 3 घंटे की फिल्म है, या रॉबर्ट डे नीरो की कसिनो है 4 घंटे की मूवी है। अब वो जो है आहिस्ता 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 बिल्डअप हो रहा है, और वो फिर जाके आतिश फिशां फटता है, ज्वालामुखी जिसको कहते हैं, एंड देन लाइक ओ वाह व्हाट अ मूवी। अब क्या है, एवरी 15 सेकेंड यू वांट अ हिट, राइट। जैसे वो फिल्मों में होता है ना, गिव मी अनदर शॉट, वो बार बार शॉट बना के दे रहे हैं और आप हिट लिए जा रहे हो। इट हैज़ बिकम लाइक दैट, इट्स fucking us mentally, but it is what it is man। तो वो उनको बहुत सारी रिजेंटमेंट्स हैं, ही मिस्ड आउट ऑन लाइफ। उनको ये भी लगता होगा यार ये अब तो मेरी तो सारी जवानी ख़त्म हो गई, नाउ आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, नाउ आई एम नॉट फिजिकली फिट इनफ टू डू थिंग्स दैट आई वुड नॉर्मली डू। मैं इतना बड़ा जहाज़ चलाता था, अब मुझसे ये नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें बुढ़ापे के आहिस्ता आहिस्ता आती रहती हैं। बात सारी वही है, हमारे यहाँ बूढ़ों के लिए कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, सैडली कोई सोशल क्लब नहीं है। कहीं भी 4 लोग बैठते हैं, वो इमरान खान और नवाज शरीफ लेके बैठ जाते हैं, कोई हेल्दी डिस्कशन नहीं होती, कोई किताब पे बात नहीं होती, कोई फिल्म नहीं देखते, कोई आर्ट्स का कोई कल्चर ही नहीं है। नापा आर्ट्स काउंसिल में एक ही किस्म के लोग आते हैं, और मतलब यू डोंट सी मासेस, तो वो उन्होंने फिर बोर ही होना है और फिर सारा दिन फ़ोन पे लगे रहना है। अब वो फिजिकल बंदे इतने काम करते भी नहीं है, लाइक इफ़ यू हैव पीपल वर्किंग फॉर यू। पाकिस्तान में ये भी तो लेज़ीपना है ना कि खानसामा अलग है, वो कुक अलग है, मतलब खानसामा सफाई वाला बच्चा अलग है,
मासी अलग आती है, कपड़े धोने वाला अलग है. सो लाइक अब इतने सारे लोग हैं आपके काम करने के लिए कि जो थोड़े मोटे काम आप खुद भी कर लिया करते थे अब वो भी नहीं करने पड़ते बिकॉज पीपल आर इजीली अवेलेबल एंड इट्स वेरी चीप टू हैव समवन. सो ये है. तो जब कुछ है ही नहीं तो फिर सोशल मीडिया ने नेगेटिव कर दिया है and he's just become a bitter old man, sadly, and which is the case among 99% of old people in Pakistan. Because हमारे डिज़ाइन ऐसा है ना कि एक बंदे ने पूरी ज़िंदगी काम करना है, पीछे 10 हैं डिपेंडेंट्स, और फिर जब वो इनेबल होते हैं फिर वो कहता है मेरा टाइम कहाँ है. एक साइरस ब्रोचा का ऐड आता था पेप्सी का, मेरा नंबर कब आएगा. तो वो बड़ी फेमस टैग लाइन थी पेप्सी की इंडिया में, मेरा नंबर कब आएगा. तो उसमें देखिएगा यूट्यूब पे फनी ऐड होते थे. तो उसमें फिर यही होता है, हमारे यहाँ जो एक टिपिकल मर्द होता है जो कमाने वाला होता है वो फिर कहता है मेरा नंबर कब आएगा, मैंने कब इंजॉय करना है, मैंने कब वेकेशंस करनी है, या मैंने कब ज़िंदगी के लाइटर मोमेंट्स एंजॉय करने हैं. क्योंकि ज़िंदगी इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ इमोशंस. बस हमने वही रगड़ा गधे की तरह रोज़ सुबह उठते हैं, सामान अपने ऊपर लाते हैं इधर से उधर उधर से उधर, एंड देन देयर इज़ नो एंजॉयमेंट, नॉट मच टू डू मैन. इट्स बिकम वेरी टॉक्सिक टू लिव हेयर. मैं हमेशा ये कहता हूँ इफ़ आई वर एवर टू लीव दिस प्लेस, उसकी बहुत बुनियादी वजह ऑफ कोर्स फैमिली इज़ वन साइड, बट जो मेरे दोस्त मूव हुए हैं जो यहाँ अच्छा कमा रहे थे, सब कुछ सही था, वो कहते थे यहाँ कुछ करने को नहीं है, दिस नथिंग टू डू. ठीक है, ग्राइंड कर लिया सारा दिन, 8 घंटे 10 घंटे मैंने काम कर लिया, नाउ आई वांट टू सेलिब्रेट व्हाट आई डिड. मैंने काम किया, मुझे इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए. रिवॉर्ड क्या है? कढ़ाई खा लो, क्या मटन कढ़ाई खा लो, और ये गुर्दा खा लो, और ये खा लो, दैट्स इट. नो सिनेमा, नो थिएटर, नो आर्ट्स, नो प्लेस टू वॉक, एंड इट्स एवरीवेयर ऑलमोस्ट नाउ. तो हर जगह आप फैमिली को ले जा नहीं सकते, कोई पुलिसिंग नहीं है, तमीज़ नहीं है लोगों में. कल मैं बीच गया हुआ था वो एक शूट करने. अब बीच देखो, अमीरों ने तो अपने फ्रेंच बीच पे हट्स बना लिए, वहाँ पे तो आप घुस भी नहीं सकते, तो वो तो वहाँ रिलैक्स कर लेते हैं. अब गरीब जाम बेचारा सी व्यू पे आता है. अब वहाँ पे वो क्वाड बाइक्स थी, इतना शोर था उसका, और वो हॉर्न बजा रहे हैं अननेसेसरीली. गाड़ियाँ अब बीच पानी के अंदर थी, हॉर्न बजा रही हैं, कोई मेक आउट करने उधर आया हुआ तो वो गाड़ी लाया हुआ है, कोई गाड़ी, किसी की गाड़ी मिट्टी में फंस गई. इट वाज जस्ट केओस. और वो इतना ब्यूटीफुल सनसेट है ना भाई. कल सनसेट कैसा था आपने देखा है ना, जब सूरज बिल्कुल ऑरेंज हो जाता है नीचे आके तो एक लाइन बन जाती है यूं करके, मुझे नहीं पता उसको साइंटिफिकली क्या कहते हैं, बट वो बड़ी खूबसूरत लगती है, जो एक पूरी ऑरेंज टिंज लाइन बनी हुई जा रही होती है. इट वॉज ब्यूटिफुल. मगर इतना शोर था, इतना शोर कि मैं आपको बता नहीं सकता. तो जो एक थोड़ी सी गरीब की इन्जॉयमेंट थी, जिसमें उसका 1 रुपया नहीं लगता है एसेंशियली, बस पेट्रोल ही लगता है वहाँ तक आने में, और वो आराम से मिट्टी में बैठ के सनसेट देख ले, पानी में थोड़ा सा चल ले, पैर गीले कर ले, वहाँ भी इतना शोर और इतना केओस. सो देयर इज नो एन्जॉयमेंट एसेंशियली. बाकी हर चीज़ हराम है यहाँ पे, तो वो एक अलग मसला है. तो ज़िंदगी भाई वैसी ही मुश्किल है पाकिस्तान में, और रिटायरमेंट के बाद तो फिर और बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए कोई एंटरटेनमेंट नहीं है. तो ये है. तो आई वुड सजेस्ट कि उनको किसी, अब आपने शहर नहीं लिखा तो अगर वहाँ कोई इस तरह के सोशल क्लब्स हैं, होने चाहिए वैसे, कोई सिगार रूम टाइप की जगह, कोई इस तरह की जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग आते हों, मिलते हों, बात करते हों, हैं. बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, होते हैं. कुछ क्लब्स होते हैं, मगर खैर वो बहुत ही एलीट लेवल सीन है. वो 25 लाख रुपए की मेंबरशिप लो आप जस्ट टू सोशलाइज, वो फिर एक अलग ही लॉट होती है. सो या उनको किसी चीज़ में लगाएं, वर्कआउट करें, और एक कोशिश करें कि इनको ना, अगर आप एक गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं, गुड फ्रेंड ऑफ माइन, यू ऑल ऑल्सो नो हिम, तो वो एक जगह रहते हैं, वो गेटेड है पूरे अपार्टमेंट. तो वो माशाल्लाह दे पेरेंट्स आर लाइक इन द लेट 70s एंड 80s. तो वो ये कहता है कि मैं बस कोशिश करता हूँ इनको चलाता फिराता रहूँ. तो मैं बोलता हूँ कि वो बेकरी से कुछ ला दें, तो अम्मी अब्बू वॉक करने, उनकी वॉक भी हो जाती है, तो उनको ना चलाते फिराते रहें, बाहर भेज दें, ये कर लें वो कर लें वगैरह वगैरह, थोड़ा एक्टिविटी रहेगी उनकी. सो या यही कर सकते हैं, उनको बिज़ी रखना है एसेंशियली. शुक्र है वो ये नहीं कह रहे मुझे पोते चाहिए कि मुझे यहाँ बिज़ी करो, दे देना वो भी जब वक्त आएगा. लेकिन अभी ये कि उनकी फ़िज़िकल फिटनेस के लिए, फ़िज़िकल वेलबींग के लिए, और ये जो कहा कि वो लड़ते बहुत हैं फ़ोन पे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से और कॉल सेंटर वालों से, इट्स वेरी रॉन्ग, बिकॉज इट्स गोइंग टू, होगा कुछ नहीं, वो 4 गालियाँ देंगे, वो दिल में गाली देगा क्योंकि कॉल रिकॉर्ड हो रही है, वो कुछ कह नहीं सकता.
स्टेटिस्टिकली सामने कॉल सुनने वाला 25-30 साल का लड़का या लड़की होंगे, आपके वाले साहब माशाल्लाह मस्ट बी इन हिज 50s और 60s। तो जितना स्ट्रेस लेंगे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। तो ट्राई उनको बिजी रखें, उनको थकाएं इतना कि वो खुद ही सो जाए और सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम ना लगाएं। चलें, ख्याल रखिएगा, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।